હવે આગળ જે આપણે થીમ ઉપર જઈએ છીએ એ પારિવારિક થીમ છે. પરિવાર એટલે શું? મુખ્ય તો આપણે સૌથી પહેલાં મા બાપના લીધે પૃથ્વી ઉપર અવતર્યા, તો પપ્પા એ શું છે, મમ્મી એ શું છે, એના વિશે થોડી લાઇન્સ આપણે રજૂ કરી રહ્યા છીએ અહીંયા. મમ્મી અને પપ્પા ઘરે છે અને એમનું બાળક જ્યારે આગળ વધી અને કમાતું થાય ત્યારે ઘડિયાળ લઈને પપ્પાને આપે છે, મમ્મીને આપે છે. ત્યારે મમ્મીને પપ્પા કહે છે, બેટા તે ઘડિયાળ તો આપ્યું પણ મને જરા સમય પણ આપજે. આ જ વસ્તુ મા બાપ જ્યારે દીકરાને કે દીકરીને ઘડિયાળ આપે છે ત્યારે પણ એમને આ જ શબ્દો બોલવા પડે છે કે બેટા તું પણ અમને સમય આપજે, પપ્પા તમે પણ અમને સમય આપજો. તો પપ્પા કોણ? પપ્પા એટલે માની સેવા કરવાથી સ્વર્ગ તો મળી જાય, પણ સ્વર્ગના દરવાજા તો બાપની ઇજ્જત કરવાથી જ ખુલે. પપ્પા રિટાયર્ડ થાય પણ ક્યારેય ટાયર્ડ નહીં, સતત એમને પરિશ્રમ કરવાનો. ઘરની વન મેન સરકાર એટલે પપ્પા, હિંમતનો દરિયો ને ક્રોધનું ઝાડ એટલે પપ્પા, સંતાનોના રક્ષણની સલામત વાડ એટલે પપ્પા. સવારે થપ્પડ મારી અને સાંજે ફરવા લઈ જાય એ પપ્પા. પોતે જૂનું સાધન રાખે ને નવી બાઇક લાવી દે એ પપ્પા. સંતાનોની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા પોતાની ઈચ્છાઓ દફનાવે તે પપ્પા. જૂનો મોબાઈલ એ રાખે, તમને સ્માર્ટફોન લાવી દે એ પપ્પા. ફાટેલી જૂની બનિયાન પહેરી તમને નવા જીન્સ લાવી દે એ પપ્પા. છોકરી સાસરે જતી હોય ત્યારે રડતા રડતા હાથ જોડી કરગરતો હોય ને તે પપ્પા. પપ્પા એમને સમજવા કદાચ ફરીથી જન્મ લેવો પડે આપણે. પપ્પા મહાન જ છે, કારણ સંતાનો બધી જ ક્રેડિટ માને આપે છે છતાંય એ ચૂપ જ રહે છે. પપ્પાની મહાનતા કોઈ કવિ, લેખક, વિવેચકની મોહતાજ નથી, માટે જ પપ્પા મહાન છે. જે કાર્યક્રમ છે, જે નાટક આવી રહ્યું છે, એની પાછળનું બેકગ્રાઉન્ડ જે તૈયાર થઈ રહ્યું છે ત્યાં સુધી આપણે પરિવારની વાત કરી લઈશું. તો પછી માં એટલે શું? બળબડતી બપોરે ટાઢા પાણીની છાલકનો અહેસાસ કરાવે એ છે માં. એક વૃદ્ધ માની વ્યથા જે હોય છે કે જે ઘરમાં વડીલની સલાહ ન લેવાતી હોય એ ઘરમાં વકીલોની ચોક્કસ જરૂર પડતી હોય છે. હોઠ અડધા પીડાઈ ગયા પછી ગંગાજળ મૂકીને શું કરશો? અંતરના આશીર્વાદ આપનારને સાચા હૃદય એકવાર પણ ભેટી લેજો. હયાતી નહીં હોય ત્યારે નતમસ્તક છબી નમીને શું કરશો? કાલની થાપડ વાગશે ને અલવિદા એ થઈ જશે, પ્રેમાળ હાથ ફરી તમારા પર નહીં ફરે. પછી ગણાય વાત્સલ્ય વાલો કરશો તો એ પછી પ્રેમાળ હાથ નહીં ફરે. માતા પિતાનો ખજાનો ભાગ્યશાળી સંતાનોને જ મળે છે. 68 તીરથ તેના ચરણોમાં, બીજા તીરથ ના ફરશો. સ્નેહની ભરતી આવીને ચાલી જશે પછી કિનારે છીપલા વીણીને શું કરશો? હયાત હોય ત્યારે હૈયું એમનું ઠારજો, પાનખરમાં વસંત આવે એવો વ્યવહાર રાખજો. પંચમહાલ ભૂતમાં ભળી ગયા પછી આ ગંગાના અસ્થિને ગંગામાં પધરાવીને શું કરશો? પૈસા ખર્ચતા સઘળું મળશે, મા બાપ નહીં મળે. ગયેલો સમય કદી પાછો નથી આવતો પછી લાખો કમાવીને શું કરશો? મા બાપની સેવા એ જ મોટી ભક્તિ છે એવું સરસ મજાનું નાટક લઈને આવી રહ્યા છે ધોરણ 8 અને ધોરણ 9 ના તેજસ્વી તાલાઓ, જેના ડાયરેક્ટર છે શ્રીકાંતભાઈ ભાર્ગવ સર. વેલકમ બેક. પ્લીઝ શ્રવણ. बहुत खूब कहा है किसी ने कि सूखे पत्तों पर जरा अदब से चलना, क्योंकि कड़ी धूप में कभी इन्हीं से पनाह मांगी थी तुमने. क्यों बोझ बन जाते हैं वो झुके हुए कंधे जिस पर बैठकर कभी दुनिया देखी थी तुमने. ये क्या हो गया आजकल के बच्चों को? माँ बाप को तो वृद्धा आश्रम भेजने का एक दौर सा बना लिया है. 4 किताबें क्या पढ़ लेते हैं, अपने संस्कार भी भूल गए. वो अपने माँ बाप को याद नहीं रख सकते
संस्कार के याद रखेंगे। शुक्र है भगवान का हमारा श्रावण ऐसा नहीं है। उसके लिए तो भगवान भी हम हैं और संस्कार भी। जैसा उसका नाम वैसा उसका काम। हमारा श्रवण सच में श्रवण कुमार है, वरना ये आजकल के बच्चे तो बाप रे बाप। ऐसे में वृद्धाश्रम ही एक सहारा होता है। इस वक्त कौन आ गया? देखिए ना, श्रवण की चिट्ठी। पढ़िए ना, क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि लॉकडाउन के कारण बिजनेस में कुछ दिनों से नुकसान चल रहा है, थोड़ी आर्थिक तंगी भी है। इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, काम का भी प्रेशर है। तो अभी आप यहाँ आके तकलीफ नहीं उठाएं। जब मैं थोड़ा स्टेबल हो जाऊंगा तो आप दोनों को बुला लूंगा। आप दोनों को बहुत प्यार। ये भगवान मेरे बच्चे का ध्यान रखना। खुदा भी एक राज है, वही जानता है उसे क्या मंजूर है। पैरों तले जमीन खिसक गई जब श्रावण का ये लेटर मिला। वो सारे मुश्किल पल आंखों के सामने घूम रहे थे, जिन्हें हम बहुत हिम्मत और साहस से पार कराए थे। शीला, क्यों ना अपना ये घर और जो कुछ गहने बचे हैं उसे बेचकर श्रवण को दे दें। वो इतने बड़े नुकसान से अकेले कैसे बाहर आएगा? और वो उस स्कूल के हजारों बच्चों के भविष्य का भी सवाल है। बेशक इससे उसकी परेशानी तो दूर नहीं होगी, पर शायद थोड़ी मदद मिल जाएगी। आप अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी बेचना चाहते हैं? पूंजी? हमारा बेटा हमारी पूंजी है, और ये सब बुरे वक्त के लिए ही तो होता है, वरना इंसान को इनकी क्या जरूरत। लेकिन घर बेचने के बाद हम रहेंगे कहाँ? हम अपने बेटे श्रवण के पास चले जाएंगे, और थोड़ा बेटे के प्यार के हकदार तो हम भी हैं। वो कितना खुश हो जाएगा हमें वहां देखकर, हैं? अब श्रवण को इन सब के बारे में बिल्कुल मत बताना, वरना वो हमें ये करने नहीं देगा। ये ठीक है। दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था कि सालों के इंतजार और ढेरों तकलीफों के बाद अपने बेटे से मिलूंगी। साथ ही एक अजीब सा दर्द भी था, क्योंकि उस जगह को छोड़कर जाना था जहाँ मेरा श्रावण का पूरा बचपन निकला था। उसकी वो हजारों यादें वहाँ कैद थी, जहाँ हम शायद दोबारा कभी नहीं आ पाएंगे। जो साथ ले पाई थी ले लिए, जो नहीं ले पाई वही छूट गया। और कुछ मुट्ठी भरी यादें लेकर निकल पड़े थे हम एक नए सफर के लिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ जी बताइए। हमें श्रवण कुमार से मिलना है। So principal sir, as per your question, I have only one condition for marriage. कि जिस भी फैमिली में मेरी शादी हो ना, they should be rich and high class. कोर्स यार, ये तो बहुत बेसिक है। Look at me. I belong to a rich and high class family. सांस सच कहूँ ना तो मुझे ये मिडिल क्लास लोग समझ नहीं आते। मतलब अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, और फिर उनके पीछे पड़ जाते हैं हमें भी साथ ले चलो। वही तो, जब साथ ही रहना होता है तो दूर भेजते क्यों है? Exactly. और तो पूरी जिंदगी ताना मार कि हमने तुम्हारे लिए जिंदगी में क्या क्या नहीं किया है। हमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी तुम्हारे पीछे। अरे किसने कहा था? हमने रोका था कि आप अपनी जिंदगी मत जियो। थैंक यू गॉड, मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं। मतलब
My father never ever asked me for anything. Never. You are so lucky, श्रवण, तुम्हें ऐसे पेरेंट्स मिले। You know, बचपन में मेरा सपना था कि मैं ऐसे किसी स्कूल में पढूं। और आज मैं इस स्कूल का ओनर हूं। लकी तो हूं। वैसे श्रवण, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। कॉलेज में भी वैसे थे और अब भी वैसे ही हो। तुम भी तो नहीं बदली, बस थोड़ी सी मोटी हो गई। I want to say something. बोलो, वैसे भी अब तुम्हारा राज है, तुम प्रिंसिपल हो, कुछ भी कह सकते हो, मोटी नाटी एनीथिंग। हाँ, I was kidding, यार। I don't know how it sounds to you, but I really want to say something. To straight to the. Let me come straight. बोलो to, ना। Will you marry me? घुटने पे जाके कहना पड़े। Oh, please. Come. Finally, 10 साल लग गए मुझे ये बात कहने। What? 10 years? Yes. तो तब से अब तक बताया क्यों नहीं? मैं अपने बेटे सरवण को लेकर आता हूँ। हमारे लिए कोई महत्व नहीं रख रहा था कि उसने हमें देखा या नहीं, बस हमने उसे देख लिया था। उस वक्त बस इंतजार था कि उसे कब सीने से लगा लूं और इतना प्यार करूं कि उसे भी उसका बचपन याद आ जाए। Wow, श्रवण, you're a great. इतने कम टाइम में तुमने इतना सब कुछ हासिल कर लिया। जिंदगी में सिर्फ एक ही ख्वाहिश बाकी थी, वो आज पूरी हो गई। श्रवण बेटा। How cheap! बेटा श्रवण। Who is he? कौन है ये श्रवण? कौन है ये श्रवण? लखन, ले जाओ इन्हें। कौन है ये श्रवण? श्रवण बेटा। बेटा श्रवण। बेटा श्रवण। ये बेटा कौन है? ये मेरे घर के नौकर है। सांझ। नौकर? तो वो तुम्हें बेटा क्यों बुला रहे हैं? अरे वो मेरे बचपन से मेरे घर पे काम करते हैं ना, तो शायद इसलिए। I know, श्रवण, you are a soft heart person, but नौकरों को इतना मुंह नहीं लगाना चाहिए। और ऑनर कितना भी प्यार करे, एटलीस्ट नौकर को अपनी औकात में रहना चाहिए। क्या कहा श्रवण ने? अंदर है ना वो? मैंने पूछा क्या कहा उसने, बताइए ना क्या कहा। श्रवण को दे दे। कहाँ है श्रवण, बताइए ना क्या कहा उसने। तो कहाँ थे हम सांझ? पिछले 10 मिनट से हम यहीं पर हैं। कम इन। सर ये मेल आपके पिताजी देखे गए। ओके। इतने पैसे? प्रॉपर्टी भी? बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। ये सब तेरे कठिन परिश्रम का ही परिणाम है कि तुम आज इस मुकाम पर हो। हमें तुम्हारी तरक्की की बहुत खुशी है। तुम्हारे फेवरेट माँ के हाथ के बेसन के लड्डू लेकर परसों आ रहा हूं, पूरे ऑफिस में बांटना।
लॉकडाउन के कारण बिजनेस में कुछ दिनों से नुकसान चल रहा है। लखन, ये पोस्ट कर रहे हैं। सुनिए तो क्या कहा श्रवण ने, बताइए ना क्या कहा। नौकर वो हमारा बेटा नहीं हो सकता। उसने आपको वो हमारा बेटा नहीं हो सकता। चलो। ओ, तो वो नौकर तुम्हारे पिताजी थे। इनफ श्रवण, मैंने एक हाई क्लास फैमिली की डिमांड की थी, तुम्हारे जैसे मक्कार बेटे की नहीं। You don't even realize what you have done. They sacrificed their whole life for you. और रिटर्न में तुमने उन्हें क्या दिया? नौकर की उपाधि। जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, जब तुम उनके नहीं हो पाए तो तुम मेरे क्या हो जाओगे? Shame on you, श्रवण। सांझ, ये अल्फाज उसने कहाँ सीखे थे? ये परवरिश मेरी तो नहीं। या तो बेटा बदल गया था मेरा, या वो परवरिश भूल गया था हमारी। इतने वक्त से वो दूर था, फिर भी पास था। आज पास था, फिर भी दूर था। आज कुछ कमी सी थी उसके बगैर, न रंग न रोशनी। वक्त तो अपनी रफ्तार से चल रहा था, बस धड़कन थम सी गई थी उसके बगैर। सांझ, मेरी बात तो सुन। क्या तुम्हारी बात सुनो? हाउ कैन यू? जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, जिन्होंने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, कंधे पर बिठाकर पूरी दुनिया घुमाई, इतना बड़ा स्कूल अकेले संभालते हो पर अपने माँ बाप को नहीं संभाल पाए तुम। अफसोस, किस बात का गुरूर है तुम्हें? क्या है तुम्हारा अपना? क्या है? एवरीथिंग बिलोंग्स टू देम। और तुमने क्या दिया उन्हें? व्हाट? नथिंग। मैं अपने पति को खो चुकी थी, पर निगाहें राहों पर टिकी थी। मेरे बेटे का जो इंतजार था, इंतजार खत्म हुआ और बेटे का स्पर्श हुआ। वो सीधे मेरे पास आया, इतना प्यार जो करता था मुझसे। मुखाग्नि के लिए जब बुलाया, उंगली थामे चलना तूने सिखाया था, पाँव थके तो कांधे पर बिठाया था, खुद की जरूरत त्याग के मेरी खुशियों को पापा तुमने अपना संसार बनाया था। नाम तेरा पहचान मेरी, नाम तेरा पहचान मेरी, मेरे पापा मेरा संसार।
मेरे पापा मेरा संसार, सर पे तेरा हाथ तेरा ही साया है, गिर के उठ कर चलना तूने सिखाया है, रौनक में पापा तेरे ही आंगन की, मेरी जिद से पहले सब कुछ मुझे दिलाया है, नाम तेरा पहचान मेरी, नाम तेरा पहचान मेरी, मेरे पापा मेरा संसार है, हो मेरे पापा मेरा संसार है, हम सबकी स्वस्ति है तुमसे, पापा तुमसे ही आधार है, ओ स्वस्ति पर